Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Ram Sankirtan ki, Ananta Koti Vaishnavan ki. Please read translation. Gurudev, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all health, give me strength. Let me be as you are, without desires or aspirations. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then, by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. Yes, without the Gurudev, we are nothing. So let's take the blessings of Srila Prabhupada, Gurudev and all the Vaishnavas and Sripad Madhvacharya. We will discuss from Sri Chaitanya Charitamrita about Madhvacharya and his followers from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay, we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 9, verse number 245. We have book? Chaitanya Charitamrita book? Madhya Leela, part 1. Yes, one book. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Bas. We will recite, please repeat after me. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा. We are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 9, verse number 245. Madhvacharya sthane aila yanra tattvavadi Udipite Krishna dekhi tahan haila premonmadi. Madhvacharya sthane aila yanha tattvavadi Udipite Krishna dekhi tahan haila premonmadi. Madhvacharya sthane aila yana tattvavadi Udipite Krishna dekhi tahan haila premonmadi. Please recite. Udipite Krishna dekhi tahan haila premonmadi. Namaskar sthane aila yana tattvavadi Udipite Krishna dekhi tahan haila premonmadi. Word meaning, translation, purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki word meaning. Madhvacharya sthane, at the place of Madhvacharya. Aila, arrived. Yanha, where. Tattvavadi, philosophers, known as Tattvavadis. Udipite, at the place known as Udupi. Krishna, the deity of Lord Krishna. Dhegi, seeing. Tahan, there. Haila, became. Prema Unmadi, mad in ecstasy. Translation. Chaitanya Mahaprabhu next arrived at Udupi, the place of Madhvacharya, where the philosophers known as Tattvavadis resided. There he saw the deity of Lord Krishna and became mad with ecstasy. Okay, purport is very big. In this purport, Prabhupada is explained about the whole small life history of Srila Madhvacharya. We will read one by para and we will discuss. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadankitam Vandeham Shri Guru Shri Yudhabadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Setam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Veshtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Nami Namaste Saraswati Devi Gauravadi Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshadarine
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Just now we sang the bhajan गुरुदेव कृपा दे दिया। हम भजन गा रहा था, उसमें गुरुदेव के बारे में, उनका एग्जाल्टेड पोजीशन के बारे में बता रहा था और हमारा दीनहीन hopeless situation of the jiva, the disciple is explained. We will see how it is related in this today's section of verses from Sri Chaitanya Charitamrita about Madhva Acharya Sampradaya and his followers. And especially in this verse, Srila Prabhupada explains about Madhvacharya in a brief, because we are coming in the same parampara. Same parampara or different? Let's see. After the conversation we will conclude we are in the same parampara or we are in different parampara. Purport. Sripad Madhvacharya took his birth near Udupi, which is situated in the South Kannada district of South India, just west of Sahyadri. This is the chief city of South Kannada province and is near the city of Mangalore, which is situated to the south of Udupi. Near the city of Udupi is a place called Pajaka Kshetra, where Madhvacharya took his birth in a Shivali Brahmana dynasty as the son of Madhya Bhatta in the year 1040 Shakabda. According to some, he was born in year 1160 Shakabda. Here we can understand Prabhupada is writing about Madhvacharya in this verse. Why? Because the very first, क्यों प्रभुपाद इधर लिख रहे हैं श्रील मध्व आचार्य के बारे में? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब सारे तीर्थ यात्रा कर रहा था, हालांकि वो तीर्थ यात्रा नहीं, वो प्रचार की यात्रा है, प्रीचिंग इन द साउथ एंटायर इंडिया। चैतन्य प्रभु पूरा भारत भ्रमण करते हुए प्रचार करते समय उन्होंने काफ़ी तीर्थ यात्रा विजिट किया था और उधर खाली विजिट नहीं किया था, उधर हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपना सारे भक्त वृंद शिष्य वृंद के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए जहाँ भी गए वहाँ भी जो देखा जो सुना, सब लोग उनको क्या कर रहा था? चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम का प्रेम सागर में डुबा रहा था सबको। अभी ऐसा डुबाते डुबाते सबको प्रेम नाम में अभी पहुंचा उडुपी। उडुपी पहुंचने के बाद उधर क्या देखा? मध्वाचार्य स्थाने आइला यानार तत्ववादी। जहाँ मध्वाचार्य रहता था उधर उन लोगों का संप्रदाय का अलग नाम बोल सकते, तत्ववादी। दूसरा, सारे तत्ववादी उधर रिसाइड करता था। तत्ववादी मतलब वन हु नोस तत्व, जिनके शास्त्र का सिद्धांत पता है, उनको बोलते तत्ववादी। अब उधर क्या हुआ था? मध्वाचार्य का जन्मस्थान है और उनका क्षेत्र है जहाँ वो रह के ये भगवान के बारे में और जीवों के बारे में और उनके संबंध के बारे में द्वैत सिद्धांत को प्रचुर मात्रा में प्रचुरित किया। In his childhood, Madhvacharya was known as Vasudeva, and there are some wonderful stories surrounding him. It is said that once, when his father had piled up many debts, Madhvacharya converted tamarind seeds into actual coins to pay them off. ये मध्वाचार्य
हमको बताते हैं आगे बढ़ के परपट में, मैं शॉर्टकट में बताता तो कि लंबा है। मध्वाचार्य वायुदेव का थर्ड इनकारनेशन माना जाता था। एक बार उनका शिष्य का नाम भी दिया था। उनको मध्वाचार्य ने अपना निज रूप दिखाया, जैसा कि उन्होंने वायुदेव का थर्ड इनकारनेशन करके वो शिष्य को और बचपन से ही वो इतना पराक्रमशाली था, इतना बलवान था, और उनका स्ट्रेंथ को देख के सारे लोग उनको भीम कहा जाता था। भीम का नाम से उनको कहलाता। ऐसा बचपन से ही ये बहुत स्पेशल आचार्य बने रहे। और एक छोटा उम्र में, जब 5 साल का उम्र में ही वो सारे सिद्धांत का मर्म पता कर दिया। जितना भी शास्त्र है सबको पढ़ते पढ़ते सारे शास्त्र का आजकल 5 साल की उम्र में कुछ भी पता नहीं होता है, तभी थोड़ा थोड़ा प्ले स्कूल या स्कूल जाने लगते हैं। लेकिन मध्वाचार्य ऐसा है कि 5 साल के अंदर ही पूरा शास्त्र का मर्म पता चला उनको। और 11 साल कंप्लीट होते 12 वर्ष में उन्होंने संन्यास दीक्षा भी लिया। 12 वर्ष में, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। 12 वर्ष में कौन सन्यासी आश्रम में जाएंगे इतना कम उम्र में। प्रभुपाद जी उसी फंता में चलते हुए अपने विदेशी शिष्यों के 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल के उम्र में ही उन लोगों को संन्यास दीक्षा दिया था। हमको पता है परम पूज्य श्री जयपताक स्वामी गुरु महाराज, ही टुक इट संन्यास इनिशिएशन एट 21। बहुत कम उम्र में संन्यास दीक्षा लेता। और खास करके हमको पता है इज लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इन संन्यास आश्रम इन आवर संप्रदाय, मोर देन 51 ईयर्स। और मध्वाचार्य बचपन से ऐसा बहुत लीला करते हैं, बहुत आश्चर्य की लीला जो सामान्य मनुष्य वो नहीं कर पाते। ऐसा ऐसा लीला कराते हैं। जैसे कि एक बार उनका पिताजी ने बहुत सारे डेब्ट को क्या बोलते हैं, कर्जा किया था, और उनको चुकाने के उनके पास पैसा नहीं था। और जो आदमी आया था घर के सामने मांगने के लिए, क्या है अभी तक कुछ वापस दिया नहीं, आपने मांगा। बोलते वो पिताजी बोलते अब जाओ बच्चे को आगे भेज देते। और जाते बाहर, मध्वाचार्य बाहर जाते हैं और उनको मिलते हैं। पिताजी है, पिताजी आपको ये देने के लिए बोले करके ये टैमरिंड का सीड्स उनको देते हैं। अरे वो बोलते हैं टैमरिंड सीड्स क्या करूँ मैं, नहीं ये पैसे है, देखो आप अच्छे से देखो करके बोलते तो गोल्ड कॉइन बन जाते हो। और ये आश्चर्य होता है यार, उनके बालक का हाथ में कुछ महिमा है, कुछ है बालक के पास। और एक बार ऐसा ही वो बचपन में खेलते खेलते एक बहुत जहरीला सांप उसको मार दिया था। कैसे मार दिया था, जस्ट उनका बाएं पैर का अंगूठी उससे दबा के उसको मार देते हैं। जय श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। बस एक उंगली से सांप को मार दिया था। और उसको देख के माता जी बहुत डर गए थे, अरे क्या हो गया मेरे बेटा को, क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उस पराक्रमी को देख के सब लोग हैरान हो गए, अरे ये साधारण बालक नहीं है, ये महान है। उस समय से सब लोगों को पता चला कि मध्वाचार्य है कुछ स्पेशल है। और उन्होंने 12 वर्ष में अच्युत अपेक्षित संन्यास लिया था। और संन्यास लेने के बाद क्या करना पड़ता है, घर में बैठ के खाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रचार करता है। संन्यास जो होते हैं उनका घर भी नहीं रहते, परिवार भी नहीं रहते, ना कुछ लेना देना रहता है भौतिक संसार से, भौतिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता। ना कभी वो आग जलाते हैं ना कुछ पकाते हैं।
ये नियम है, काफ़ी सारे नियम है। सन्यासी ही नेवर कुक्स फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उनका घर भी नहीं है, उनका संसार ही नहीं है, कैसे करते? इसलिए अपना असिस्टेंट करके करवाते हैं। आजकल हमारा संप्रदाय में चलता है कि वो लोग नहीं बनाते, लेकिन उनका असिस्टेंट या कोई, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब जा रहा था उनको अकम्पनी कर रहा था, कोई ना कोई एक शिष्य अकम्पनी करता था। जब कोई नहीं था, एक बार नित्यानंद राम ने क्या किया था, अपना सर्वेंट को दे दिया था, काला कृष्णदास, इनको लेके जाओ, है ना। ऑलवेज सन्यासी विल बी अकम्पाइंड बाई सम अदर डिवोटीज, इज नेवर अलोन। ऐसा ही मध्वाचार्य अपने शिष्य वृंद के साथ वो व्यासदेव मिलने के लिए, व्यासदेव जी को मिलने के लिए हिमालय की तरफ जाते हैं, और जाते जाते भी काफ़ी सारे पास्टम करते हैं। उसके बारे में एक फिल्म भी आया था, द पास्टम्स ऑफ श्रील मध्वाचार्य करके, देख सकते हैं अगर कोई किसी को इच्छा है तो। और ऐसे चलते चलते वो पहुंचते हैं बद्रिकाश्रम हिमालय में। उधर पहुंचने के बाद रास्ते में अपना शिष्यगण आ नहीं पाते, वो चढ़ नहीं पाते ऊपर हिमालय में, और नीचे ही रह जाता है। और मध्वाचार्य अकेले आगे बढ़ के और बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं। उधर पहुंचने के बाद किनको मिलते हैं? बद्रिकाश्रम में कौन रहते हैं? श्रील व्यासदेव, वो आज भी जीवित है। अगर कोई योग्यवान व्यक्ति हिमालय में जाके बद्रिकाश्रम में श्रील व्यासदेव जी को ढूंढने का प्रयास करते तो शुद्ध भक्तों को जरूर व्यासदेव जी दर्शन देगा। और ऐसा भी माना जाता है कि मध्वाचार्य ही इज स्टिल रिजाइडिंग देयर इन हिमालय इन द बद्रिकाश्रम विथ व्यासदेव। ये आगे जाके परपट में प्रभुपाद खुद बताते हैं बात। और ऐसे करते करते एक बार उन्होंने ऐसा लीला करते हुए वो अपनी क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल एनर्जीज को डिस्प्ले करने लगा। एक बार क्या हुआ था, अपने शिष्य बंधुओं के साथ चलते हुए समुद्र के तट पे वो देखा था एक शिप जो है समुद्र के लहरों के अंदर बहुत क्या बोलते हैं, डूबने के लिए परिस्थिति दिखाई पड़ रहा था। मध्वाचार्य ने क्या किया था, अपने हाथ से ही पवन को कंट्रोल कर दिया था और सारे विंड्स को कंट्रोल करके वो जो शिप तो सही जगह पे पहुंचने का किया था। और जो कैप्टन देखा था, वो मालिक देखा था शिप का, अरे मध्वाचार्य ने उधर से ही मेरे को संकेत दिया था कैसे आना कैसे जाना है करके, और ये देखा था कि मैं कुछ कृत्य करना था कि पूरा कुछ दे दूँ। और उन्होंने सोचा कि क्या दूँ, मेरे पास इस शिप में इतना सारे सामान है, क्या दूँ। और मध्वाचार्य ने बोला ये जो गोपी चंदन है मेरे को दे दे, है ना। सारे भक्तगण वैष्णवगण क्या करते हैं, गोपी चंदन से अपना शरीर को आभूषण करते तिलक से। और मध्वाचार्य ने भी वो गोपी चंदन मांगा, वो गोपी चंदन दे दिया था मर्चेंट ने। और गोपी चंदन लेके मध्वाचार्य आ रहा था और वो स्लिप होके गिर गया और टुकड़ा हो गया, उससे प्रकट हुआ कृष्ण भगवान, उडुपी कृष्ण भगवान की। और ये इतना हेवी था कि 30 लोग मिलके भी वो विग्रह को उठा नहीं पाता। 30 लोग मिलके भी, बलशाली 30 लोग भी मिलके उडुपी कृष्ण को उठा नहीं पाता, स्थानांतर भी नहीं कर पाता। अब ऐसा उडुपी कृष्ण को मध्वाचार्य अकेले उठा के लेके आता था, अकेले उठा के लेके आके अभी जो मंदिर है उडुपी श्री कृष्ण का मंदिर, उधर स्थापित करके उनको वर्शिप करने लगा। और ऐसा करते करते प्रचार करते करते मध्वाचार्य काफ़ी शिष्यों को बनाया और मुख्य प्रकार के 8 शिष्यों को बनाया था और 8 शिष्यों के एक एक मठ स्थापन करके दिया था। और उन सबको नियंत्रित किया कि आप ये मठ को पालन संभालो और प्रचार करो करके मध्वाचार्य उन लोगों को प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। और उसी
संप्रदाय में वन ऑफ द ब्रांचेस हमारा ब्रह्मोदय गौड़ीय संप्रदाय का आचार्यगण है, पूर्ववर्ती आचार्य। इसमें प्रभुपाद भी वो डिसिपल सेक्शन का उनका ईयर के साथ परपट में लिखते हैं कैसे मध्वाचार्य संप्रदाय में कैसे ये जो तत्व ज्ञान है कैसे भगवान से कैसे वो डिसेबल सेक्शन में आ रहे, पूरा लिखते हैं इसमें। और प्रभुपाद जी बताते हैं एंड पे और मध्वाचार्य जब ऐत्रेय उपनिषद को कमेंट्री लिख रहा था उस समय पे लिखते लिखते उन्होंने शरीर त्याग किया था। Srila Madhvacharya passed from this material world at the age of 80 while writing a commentary on Aitreya Upanishad. For further information about Madhvacharya, one should read Madhva Vijaya by Narayana Acharya. Prabhupada is recommending a book, Madhva Vijaya by Narayana Acharya, to know about more about Madhvacharya. मध्वाचार्य के बहुत बारे में बहुत जानकारी लेने के लिए मध्व विजय का ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी हमको सूचित कर रहे। अभी चैतन्य महाप्रभु ने उधर भगवान कृष्ण उडुपी कृष्ण का दर्शन लिया था और दर्शन करके क्या किया, क्या किया हमारे लिए क्या है, अभी देखते हैं आगे श्लोकों से क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने। नर्तन गोपाल देखे परम मोहने मध्वाचार्य स्वप्न दिया आइला तंडस्ताने। While at the Udupi monastery, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Nartak Gopal, dancing Gopal, a most beautiful deity. The deities appeared to Madhvacharya in a dream. The same deity which was obtained to Madhvacharya in the lump of Gopi Chandan, he came in the dream of Madhvacharya. That's what he is saying. Gopi Chandana tale aicha dhingate Madhvacharya se Krishna paila konmate. Madhvacharya had somehow or other acquired the deity of Krishna from a heap of Gopi Chandan that had been transported in a boat. Madhvacharya tanre karila stapana advayavadi seva kare tattvadi gana adya avadi seva till to date. Madhvacharya brought this dancing Gopal deity to Udupi and installed him in the temple. To date, the followers of Madhvacharya known as Tattvavadis worship this deity. कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पैला प्रेमावशे बहुक्षण नृत्य गीत कैला. By seeing this dancing Gopal, Sri Chaitanya Mahaprabhu became in ecstasy. और एक डांसिंग गोपाल को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ है, बहुत एक्सटेसी में चले गए और उनको आनंद देने के लिए जो उडुपी कृष्ण को जो उनको आनंद देने के लिए क्या किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु डांसिंग कीर्तन चालू किया था, है ना. हमारे लिए कितना लोग हैं भगवान को आनंद देने के लिए हम डांसिंग कीर्तन करते हैं, है ना. सोच सकते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दे रहा है कि जो डांसिंग कीर्तन है हमारा इंद्रियों के संतृप्ति के लिए नहीं, न दूसरों के इंद्रिय संतृप्ति के लिए नहीं, किनकी संतृप्ति के लिए, भगवान कृष्ण भगवान के संतृप्ति के लिए. जो भी आल्टर में खड़े हैं उन लोगों का संतृप्ति के लिए हम क्या करना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए नाचना गाना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे. काफ़ी बार हम देखते हैं अरे संडे है, आज सैटरडे है, लोग बहुत आएगा, चलो डांसिंग कीर्तन करते हैं. अरे बच्चे लोग आया,
उन लोगों को नचवाते हैं ऐसा। लेकिन वो अच्छा है, लेकिन उनको ये भी भाव होना चाहिए कि हम जो नाच रहे हैं भगवान के लिए नाच रहे हैं। खास करके हमारा मंदिर में काफ़ी एक्स्ट्रा कीर्तन होते हैं, खास करके शाम को। हम देखना चाहिए भगवान का क्या मूड है, उसकी हिसाब से हम करना चाहिए, है ना। एक एक भगवान के लिए एक एक मूड होता है, उसकी मूड के अनुसार हम क्या बोलते चलना है। इधर डांसिंग गोपाल को देख के श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किया था, डांसिंग कीर्तन किया था। और उस समय पे क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए क्या होता था, बहुत कुछ होता था। ऐसा कुछ, हाँ किनका यस हाँ, चैतन्य शिष्टाष्टकम को पता चलता है कैसे जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करता था क्या होता है उनके साथ। उनके साथ तो होते जो पता चला, लेकिन सामने वालों को क्या होता है सुनते हैं। ये तत्ववादी जो है उनको क्या हुआ, तत्ववादी गण प्रभु के मायावादी ज्ञाने, प्रथम दर्शने प्रभु के नाकैल संभाषणे। तत्ववादी जब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो क्या किया था वो लोग, कुछ नहीं बोल रहा था चैतन्य महाप्रभु से बात नहीं कर रहा था। ऐसा कोई ऐसा भावुक भक्त कोई मतलब कोई भी ऐसा उच्च स्तर में जो भी है, वो भगवान के सामने आके डांसिंग कीर्तन करते हुए नाचते हुए हम उनको क्या करते हैं, इंक्वायरी करते कौन है, कैसे, कहाँ से आया है, क्या नाम है। लेकिन इधर तत्ववादी से ने क्या किया, उन चैतन्य महाप्रभु को देख के कुछ बात भी नहीं करने के तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि ये तत्ववादी से सिद्धांत है उनके पास है, वो सिद्धांत से क्या करते वो स्पेकुलेट करते रहते, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा है ऐसा है करके। वो क्या कर रहा था, ऐसे स्पेकुलेट कर रहे। अभी क्या हुआ, पाचे प्रेमावेश देखी हाइला चमत्कारा, वैष्णव जने बहुधा करील सत्कारा। जब दोबारा देखा बाद में, जो प्रेमावेश में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस संकीर्तन को देखते हुए सब लोग क्या होता, आश्चर्य हो गया था, स्ट्रक विद वंडर, हाइला चमत्कार। और उसके बाद क्या किया था, वैष्णव जाने बहुत करीला सत्कार। उसके बाद किया था, समझ लिया ये ऐसा कोई भावुक नहीं है, ये वैष्णव है जो प्रेमावेश में होके भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे के उनको पहचाना, चैतन्य महाप्रभु को पहचाना। और उसके बाद क्या किया था, उनको बहुत सत्कार किया था, आदर प्रदान करके बहुत सत्कार किया था। और सत्कार करके देखा था चैतन्य महाप्रभु ये सब अच्छे से देख रहा था, ये तत्ववादी क्या कर रहे हैं। तुरंत चैतन्य महाप्रभु एक चीज़ नोटिस किया था, वो चीज़ हमारे साथ में भी है। वो क्या देखा था सुनिए, वैष्णवत सबरा अंतरे गर्व जानी, ईसद हाइशा किचु कहे गौरमणि। Sri Chaitanya Mahaprabhu could understand that the Tattvavadis were very proud of their Vaishnavism. He therefore smiled and began to speak to them. चैतन्य महाप्रभु क्या नोटिस किया था, ये सारे तत्ववादी जो है दे आर वेरी प्राउड फ्रॉम विद इन इनसाइड, अंदर से वो बहुत गर्व बन गया, अंतरे गर्व जानी। चैतन्य महाप्रभु क्या किया था, उन लोगों के मन में जो गर्व था उसको पहचाना, है ना। ऐसा कि सारे जो भी साधक है उनका मन में भी थोड़ा गर्व रहता है, अरे मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक्सटर्नली बोलते हैं अरे सब आपकी कृपा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंदर से क्या बोलते हैं, भाई कर रहा हूँ। जब भगवान इस मेंटालिटी को इस मेंटाल को देखेगा क्या करते हैं, उसको तुरंत रेक्टिफाई करेगा।
तुरंत। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ, एक बार अनेक बार हुआ। रिसेंटली जब सिरसिला में हमारा फार्म प्रोजेक्ट में एक बोरिंग करवाया था, करने के बाद मैं उनको साथ जो कैलकुलेशन पैसे देने के लिए वो कैलकुलेशन करने के लिए गया था। मैं बहुत एक प्रश्न पूछ रहा था और उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ बोल रहा था। ऐसा भी बोला था अगर मैं अभी काम करते हुए बहुत पैसे कमाता था, ये बहुत ये तुच्छ होता था मेरे लिए बनाने स्पॉन्सर करने के लिए, ऐसा करके बोल रहा था मैं। तुरंत वो आदमी बोला था आप काम का नहीं है, आप ऐसा साधु नहीं है करके मेरे को तुरंत रेक्टिफाई किया। मैं समझ लिया अरे मैं तो कुछ तो गड़बड़ किया। मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ किया, अरे मैं ऐसा बोला हूँ। ऐसा संवाद करते हुए अंदर से उनकी पत्नी आई और वो भी बोला अरे स्वामी जी आप ऐसा बात कर रहे हो। मैं उतना ही बोला था, लेकिन उन लोग को इतना हट हो गया था कि उन लोग का ईगो टच हो गया। क्योंकि मैं बोला था आप इतना अच्छे व्यक्ति होने के बाद भी कुछ कम नहीं करो, नहीं तो स्पॉन्सर नहीं करो करके मैं ऐसा उनको उत्तेजित करने के लिए ऐसा बोला, लेकिन उनको नेगेटिव हो गया। बहुत ईगो हो गया था। मैं तुरंत उनको बोला था माफ़ी की क्षमा चाहता हूँ करके उनको माफ़ी मांगा। उस समय पे मेरे को याद आया कि ये भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे हैं। ये अंतरंग के जो थोड़ा भी गर्व होता है ना तुरंत भगवान रेक्टिफाई कर लेते हैं। इधर चैतन्य महाप्रभु भी इस तत्व इसका मन में जो भी गर्व था उसको पहचाना। उनका गर्व किस कारण में था? दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर वैष्णविज्म, वैष्णवता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते देखिए, आगे बढ़ के एक अच्छा ऐसा शब्द बोलते कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो एंड में आएगा, सुनते आगे। तान सबर अंतरे गर्व जानी गौरचंद्रा, तान सब संगे गोष्ठी करीला आरंभा, considering them very proud, Chaitanya Mahaprabhu began his discussion. अभी चैतन्य महाप्रभु क्या किया? संभाषण करने लगा उन लोगों के साथ। क्या संभाषण करने लगा? अभी चैतन्य प्रभु हम्बुल बन गया। हम्बुल बन के पूछ रहे, क्या पूछ रहे देखिए। तत्ववादी आचार्य सब शास्त्रे ते प्रवीणा, तान रे प्रश्न कैला प्रभु है नदीना। देखा था वो सारे तत्ववादी बैठा है, उन लोग का चीफ भी बैठा है, और चीफ इतना तत्व ज्ञानी है, सारे शास्त्र में निपुण है। और उस चीफ क्या बोलते मास्टर को चैतन्य महाप्रभु हमली रिक्वेस्ट कर रहे, क्या कर रहे? तान्र प्रश्न कैला प्रभु हाना ये न दीना। हमली क्वेश्चन हिम। क्या प्रश्न पूछा सुनिए। साध्य साधनामी न जानी भलमते, साध्य साधन श्रेष्ठ जाना आमते। ये क्वेश्चन हमारे जीवन में भी होना चाहिए। क्या है साध्य, क्या है साधन, क्या है और उसका लक्ष्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु पूछा क्या? आई डोंट नो वेरी वेल द एम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू अचीव इट। प्लीज टेल मी ऑफ द बेस्ट आइडियल फॉर ह्यूमैनिटी एंड हाउ टू अटेन इट। चैतन्य महाप्रभु वो तत्ववादी का आचार्य को पूछा, क्या पूछा था? साध्य क्या है, साधन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? और आचार्य तो बहुत शास्त्रों में निपुण है, वो सोचा था और सोच के तत्व के ऊपर, तत्व के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने उत्तर देने लगा। क्या दे रहे? आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण, ये है कृष्ण भक्तेर श्रेष्ठ साधना। साधना द बेस्ट मीन्स ऑफ अचीवमेंट। प्रभुपाद लिखते हैं बेस्ट मीन्स ऑफ अचीवमेंट। The Acharya replied, when the activities of the four castes and the four ashramas are dedicated to Krishna, they constitute the best means whereby one can attain the highest goal of life. वो आचार्य ने क्या बोला था? तत्ववाद आचार्य ने वो बोल रहा था कि वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भगवान कृष्ण को डेडिकेट करना है। कौन सा वर्ष था वो? सांस्कृतिक धर्मस्य
संसिद्धिम हरिशन। हाँ, अतः पुंबि द्विजाश्च वर्णाश्रम विभागशः शांतिश्च धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। भागवतम से हमको उपलब्ध होता है कि वर्णाश्रम का जो मुख्य गोल होते हैं क्या है? भगवान विष्णु का प्लीज करना, संसिद्धिम हरितोषणम, वही होते वर्णाश्रम का मर्म। और इधर तत्ववाद आचार्य ने वही बोला। कुछ गलत बोला क्या? नहीं बोला ना? देखते हैं आगे क्या होता है। आगे वो बता रहा और साधन के बारे में बता ले। अभी साध्य के बारे में बताएंगे। साध्य मीन्स द हाईएस्ट गोल ऑफ अचीवमेंट, साध्य श्रेष्ठ है। पंचविध मुक्तिपाना वैकुंठे गमना साध्य श्रेष्ठ हया यही शास्त्र निरूपणा। When one dedicates the duties of Varnashram Dharma to Krishna, he is eligible for 5 kinds of liberation. Thus he is transferred to the spiritual world in Vaikuntha. This is the highest goal of life and the verdict of all revealed scripture. वो क्या बोल रहा था? जब ये वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए भगवान को सारे अर्पण करते हैं और वो जो आदमी है साधन करते हैं, तब उनका मिलने वाला क्या है? 5 प्रकार की मुक्तियाँ मिलेगी। ये ही है 5 प्रकार की मुक्ति होगी और वो वैकुंठ प्राप्त होगे। यही है हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है करके तत्ववादी आचार्य ने बताया। ये सही है गलत है? हाँ, हमको लग रहा है सब यही बोलते हैं, सारे शास्त्र सारे सब कुछ भगवान के लिए करना है, भगवान को अर्पण करना है, हाँ, और वैकुंठ जाना है, 5 प्रकार मुक्ति भी मिल जाएगी। तत्व आचार्य ने बोला। अभी चैतन्य महाप्रभु उनको बोला था, कैसे उनको उत्तर को खंडित कर रहे। समाधान को खंडित करने के लिए काफ़ी सारे पद्धति होते हैं। इधर चैतन्य महाप्रभु इतना हम्बली बता रहे थे। सुनिए क्या बता रहे। प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तना कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परम साधना। क्या बोल रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु said, according to the verdicts of Shastras, the process of hearing and chanting is the best means to attain loving service to Krishna. है ना? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जो शास्त्र का मर्म जो है वो है क्या है? भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त करना शास्त्रों का मर्म है करके चैतन्य महाप्रभु उनको बता रहे। और इसी उपरांत में हमको पता चलता है जब पंचतत्व जो है ये हरिनाम संकीर्तन को बांटने, ये महामंत्र को बांटने आ रहा था, ये प्रेम फल को बांटने आ रहा था। उस समय पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद हैं ये पंचम पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं। I am referring from Sri Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 7 verse number 84 and 85, where Krishnadas Kaviraj Goswami is telling about the Chari Purushartha and overall above is Pancham Purushartha. He is going to explain in these 2 verses. कृष्ण विषय का प्रेमा परम पुरुषार्थ। बोलिए। यार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। Religiosity, economic development, sense gratification and liberation. In other names, dharma, artha, kama, moksha, are known as the 4 goals of life. But before love of Godhead, the 5th and highest goal, these appear as insignificant as straw in the street.
धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए सारे जनता जो प्रयास करते हैं जीवन भर, उसको क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे? दे आर जस्ट लाइक तृणतुल्या, घास के तिनके बराबर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना इंसान को रगड़ना पड़ता है, कितना प्रयास करना पड़ता है। उतना प्रयास करने के बाद जो मिलने वाला है उसको क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु? इज जस्ट लाइक तृणतुल्या, इज जस्ट लाइक इज इक्विवेलेंट एज गुड एज ए ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास। पर्पट में प्रभुपाद जी अच्छा बताते, सुनिए। While chanting the holy names of the Lord, one should not desire the material advancement represented by religiosity, economic development, sense gratification, and ultimately liberation from the material world. प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे? Chanting the holy, while chanting the holy name of the Lord, one should not desire for these four things: dharma, artha, काम, मोक्ष. ये बहुत गहरी की बात है। प्रभुपाद जी क्यों इसके बारे में बता रहे? कितना लोग है जब करते हुए कुछ ये चारों चीज के बारे में नहीं सोचता सोचते हैं ना आज कितना किताब बांटेंगे हम लोग, सब बांटेंगे और कितना नाम आएगा, कितना स्कोर आएगा, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर थोड़ा ही ये जो पंचम पुरुषार्थ के बारे में हम सामने नहीं रख के काम करते, सेवा करते, वो क्या होते हैं? ये ऐसे बन जाते हैं। As stated by Chaitanya Mahaprabhu, the highest perfection in life is to develop one's love for Krishna. Prem apmarto mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur matamidam. When we compare love of Godhead with religiosity, economic development, sense gratification and liberation, we can understand that these achievements may be desirable objects for bubukshus. Bubukshus means sense gratifiers, or those who desire to enjoy this material world. And mumukshus, those who are desire liberation from it. But they are very insignificant in the eyes of pure devotee who has developed bhava, the preliminary stage of love of Godhead. प्रभुपाद पर्पट में बता रहे कि जो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति प्रेम है, उनको क्या लगता है? ये चार पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष है, कैसे लगते हैं? वो तुच्छ लगता है, इनसिग्निफिकेंट, जो काम का नहीं करके लगता है उनको। वो कैसे है पंचम पुरुषार्थ? पंचम पुरुषार्थ क्या है? हाँ, लव ऑफ गॉडेड, कृष्ण प्रेमा, है ना। हम 10 नाम अपराध पढ़ने के बाद यही बोलते हैं, जिसको शीघ्र से शीघ्र कृष्ण प्राप्ति करने के लिए क्या करना है? सारे अपराधों से बचना चाहिए। और उसका आनंद कैसे है, कोई तुल्य कर सकता है? सुनिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेमा आनंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद यार नहीं एक बिंदु। क्या बता रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने? ये जो पंचम पुरुषार्थ का जो आनंद का भंडागार है वो कितना बड़ा है? एक सिंधु जैसा, एक सागर जैसा है, बहुत बड़ा है, ह्यूज, देयर इज नो लिमिट्स। और ये चार पुरुषार्थ के बारे में कैसे बता रहे? वो सागर का एक बूंद। अभी हम अंचना कर सकते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र में कितना प्रेम भरा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी चीज़ के लेकर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत अच्छा बताया था कि जैसा कि मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, जो व्यक्ति नाम और नाम के स्वाद जो रस मिलते हैं और रस को अलग बोलते हैं, वो वैष्णव नहीं है। जो नाम और उनका उसके मिलने वाले रस, तो दोनों अलग जो बोलते हैं वो वैष्णव नहीं है, वो गौड़ी नहीं है।
जो बोलते नाम और नामी दोनों अलग है, वो वैष्णव नहीं है। ऐसा बहुत अच्छा वर्णन करता है। हम जिस रस के लिए प्राप्त करते हैं, जिस रस के लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं, वो रस और कोई नहीं है, केवल भगवान के नाम ही है। नाम, द नेम इटसेल्फ इज द रसा, द नेम इटसेल्फ इज द रिलिशमेंट इन आवर डिवोशनल सर्विस। केवल नाम ही है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं? हाँ, नाम नहीं 14 भुवन माझे, हाँ, नाम बिना किच्छु नाही को आ रहा है, 14 भुवन माझे। इन दिस 14 प्लानिटरी वर्ल्ड देयर इज नथिंग बट द होली नेम। वही शास्त्र का मर्म है। अगर जो व्यक्ति ये पता चलता है सारे सृष्टि में नाम के बिना कुछ और नहीं, हम बोल सकते हैं वो शुद्ध सत्व में, तुरीय अवस्था में, ही इज बियॉन्ड द मटेरियल मोड्स। और वही चीज समझाते हुए इधर तत्ववादी को चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे? बैक टू द 9th चैप्टर। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? ये सारे शास्त्र का मर्म जो है क्या था? कृष्ण प्रेम सेव फलेर प्रेम साधना। द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग इज द बेस्ट मीन्स टू अटेन लविंग सर्विस टू गॉड। साधन के बारे में बता रहे चैतन्य महाप्रभु। वो क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षण क्रियेत भगवती अद्दा तन्मये अधिथम उत्तमम। चैतन्य महाप्रभु बोला कि ये जो नवविधा भक्ति है वो जो है साधन है। श्रवण कीर्तने हईते कृष्ण हय प्रेमा से ही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थे सीमा। अभी बता रहे चैतन्य महाप्रभु क्या? पुरुषार्थ सीमा, जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का लिमिट, और लिमिट क्या है? पंचम पुरुषार्थ है। वो क्या है? प्रेम, भगवान कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम। व्हेन वन कम्स टू अ प्लेटफॉर्म ऑफ लविंग सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा बाय एग्जीक्यूटिंग दीज 9 प्रोसेसेस beginning with hearing and chanting, he has attained the 5th platform of success and the limit of life's goals. उससे उनको बता सकते हैं वो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त किया है। जो ये नवविधा भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप से और कथा से चालू करते, सुनने में से चालू करते हैं, श्रवणम और कीर्तनम, उनको बोल सकते हैं वो जीवन का परम लक्ष्य को जाना है और उनको प्राप्ति भी करेगा वो। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कैसे वो जो नाम का, जिनके पास नाम पहुंच गया उसको क्या होते देखिए। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जतानुरागो दूर्त चित्त उच्चै हसति अतो रोदति रोति गायति उन्मादवन्नृत्यति लोकबायः। When one is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated and chants just like a madman, not caring for outsiders. उनका लक्ष्य कैसे लिखता है? लक्षण कैसे दिखता है? He will become a mad, उन्मादी, उन्मादी बन जाता है। किसका उन्मादी? प्रेम उन्मादी। और चैतन्य महाप्रभु आगे बोल रहे हैं, कर्म निंद कर्म त्याग सर्वशास्त्र कहे, कर्म है ते प्रेम भक्ति कृष्ण कबू नाहे। In every revealed scripture there is a condemnation of fruitive activities. It is advised everywhere to give up engagement in fruitive activities, for no one can attain the highest goal of life, love of Godhead, by executing them. सारे शास्त्र का मर्म क्या बता रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पालन करते हुए
कर्म करते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। चैतन्य महाप्रभु अच्छे से समझा रहा है। सारे वेद को तीन भागों में हम समझ सकते हैं, जैसे कि कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। कर्मकांड मतलब वो जो फ्रूटिव एक्टिविटीज़ है, और ज्ञान कांड मतलब जो नॉलेज, जीवन कैसे जीना है, वो कार्य कैसे करना है, वो दोनों में, और दोनों का त्याग करना है। और कौन सा स्वीकार करना है, उपासना कांड, वर्शिपिंग ऑफ द लॉर्ड, उसको स्वीकार करना है। प्रपट में प्रपंच बताते कि कैसे वो जो भगवद गीता में बताया है, और एंड में लास्ट में हमको पता चलता है भगवद गीता का एंड में क्या भगवान संदेश दे रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बता रहा है कि सब त्याग कर लो और मुझको स्वीकार कर लो करके कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में बता रहे। वही शास्त्र का एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी हमको बता रहे कि हम भगवान का नाम जप और भक्ति करना चाहिए। ये जो सारे जो भी कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उसको त्याग करना है कि चैतन्य महाप्रभु भी हमको आदेश दिया है। और बता रहा है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों को त्याग करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को त्याग करके भगवान का भक्ति करता है, उनको बोल सकते हैं फर्स्ट क्लास मैन, ही इज ए फर्स्ट क्लास मैन। तावत् कर्माणि कुर्वीत नानिर्विद्येत यावता मत्खाता सर्वन्दो श्रवणादो वा श्रद्धाया वा न जायते। As long as one is not satiated by the fruitive activities and has not awakened his taste for devotional service by Shravanam Kirtanam Vishnu, one has to act according to the regulative principles of Vedic injunction. आगे बता रहे हैं, जब तक कोई जब भौतिक संसार का जो कार्यकलापों से सैटिस्फाइड, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्विद्य था, उसको हमारा भाषा में बोल सकते हैं फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली डन विद द मटेरियल वर्ल्ड। वही आदमी को क्या हो सकता है, जब तक हम इससे इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेट, जब तक ये स्टेट तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमको क्या होता है, ये श्रवण कीर्तन जितना भी करो उसमें क्या होता है, रस नहीं मिलने वाला है ना। जितना भी श्रवण कीर्तन करो, ये नवविध भक्ति करो, जब तक हमको रस नहीं मिलेगा तब तक हम ये भौतिक कार्यकलापों से क्या बोलते हैं, कंप्लीट कर दे, मतलब हो गया उसका संतुष्ट हो गया, उसको बस आगे नहीं चाहिए, बस करके जो बोलेगा तब जाके उनको ये भक्ति में उनको स्वाद मिलेगा, रस मिलेगा, नहीं तो रस मिलने वाला नहीं। चैतन्य बाबा अच्छे से डिक्लेयर कर रहे थे, पंचविधा मुक्ति त्याग करे भक्त गना पालगु करी मुक्ति दे नरक समा। चैतन्य बाबा आगे बता रहे, वो तत्ववाद आचार्य ने बोला था वर्णाश्रम धर्म करना चाहिए, हाँ पालन करना चाहिए, कृष्ण भगवान के लिए करना चाहिए, और उसके करते करते क्या होता है, उनको 5 लिबरेशन मिल जाता है और वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है करके बताया। अभी चैतन्य महाप्रभु उसको खंडन करते हुए बता रहे, जो 5 मुक्ति है वो भक्त लोग क्या करते हैं, त्याग कर देते, हाँ त्याग कर देते। 5 मुक्ति क्या है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सार्ष्टी, ये 5 मुक्ति है, उनको भक्त लोग त्याग कर देते। वो कैसे त्याग करते, क्यों त्याग करते हैं, आगे बढ़ के चैतन्य महाप्रभु उन लोग को एग्जाम्पल के साथ, शास्त्र का उदाहरण के साथ समझाते हैं, है ना। अगर कोई भी चीज़ हम दूसरों को समझाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल देते हैं, एनालॉजी देते हैं, है ना, इधर से रिफ़र करते हैं, उधर से करते हैं, और बाद में हमारा खुद का एक्सपीरियंस बता देते हैं,
है ना। वो सब करते करते उनको क्या करते हैं हम लोग, उनको समझाने कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी उन लोगों को समझा रहे, जो 5 मुक्ति है वो त्याग करते भक्तगण। क्यों, कैसे, कौन है, शास्त्र का आधार हमको पता है। जो महाराज भरत है, वो क्या किया था, श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक है इधर कोट किया है चैतन्य महाप्रभु ने, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप material opulence, land, children, society, friends, riches, wife, are the blessings of the goddess of fortune, which are desired even by the great demigods. But King Bharata did not desire such things, and this was quite befitting his position, because of a pure devotee whose mind is always engaged in the service of the Lord. Even liberation or merging into the existence of the Lord is insignificant, and what to speak of material opportunities. चैतन्य महाप्रभु कोट कर रहे महाराज भरत का, महाराज भरत का एग्जाम्पल बता रहे। वो सारे पूरा सृष्टि का मालिक होते हुए भी वो क्या किया था, वो सारे तुच्छ जैसे उसको त्याग किया था, और लिबरेशन को भी नहीं चाहते हैं, वो भगवान के साथ मर्ज होने के भी नहीं चाहते हैं, वो सब नहीं चाहते हुए उनको भौतिक संसार का जो तुच्छ संतृप्तियाँ, तुच्छ कार्यों का संतुष्ट जो है, संतृप्ति जो है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए करके चैतन्य महाप्रभु महाराज भरत का उदाहरण दे रहे। और उतना भी नहीं, आगे बढ़ के चित्रकेतु महाराज का भी उदाहरण देते हैं। चित्रकेतु का महाराज का पता है, जैसे वो सारे त्याग कर देते हैं। कैसे, नारायणा परा सर्वे न कुतश्च बिभ्यति सर्वापवर्ग्य नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। A person who is a devotee of Lord Narayana is not afraid of a hellish condition, because he considers it as the same elevation to the heavenly planets or liberation. The devotees of Lord Narayana are accustomed to seeing all these things on the same level. नारायण के जो भगवान के भक्त है क्या करते हैं, वो सारे जितना भी नरक है, स्वर्ग है, ये जो मुक्ति है, सब एक समान जैसा दिखता है, उनको चाहते भी नहीं। मुक्ति कर्मा दुई वस्तु त्यजे भक्तगण सेई दुई स्थापना तुम्ही साध्य साधना। उन तत्ववादी आचार्य को चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि आप ये दोनों स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो साध्य और साधन के नाम पे, लेकिन इन दोनों को क्या करते, भक्तगण उसको त्याग कर देते हैं, वैष्णवगण उसको त्याग कर देते करके बता रहे। और ऐसा उत्तर देने के बाद चैतन्य महाप्रभु उन तत्ववाद आचार्यों को, उस तत्ववाद आचार्य को निवेदन कर रहे हैं क्या, सन्यासी देखिए मोरे करह वचना न कैल तेनी साध्य साधन लक्षणा। आप मेरे को चीटिंग कर रहे हो। कैसे, आप मेरे को सन्यासी रूप में देख के जो असली मर्म क्या है, साध्य और साधन का असली अर्थ क्या है, आप मेरे को बताया नहीं, कृपया मुझको बताओ, मेरे को बताओ करके चैतन्य महाप्रभु सबमिट कर रहे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु क्या किया, उत्तर भी दे दिया। उत्तर देने के बाद भी फिर से बोल रहे कि आप मेरे को चीटिंग कर रहे हो, सन्यासी वेश में मेरे को देख के आप पूरा सही उत्तर नहीं बता रहे हो, अब बताओ। अभी ये सुन के ये तत्ववाद आचार्य को बहुत लज्जित हो गया, और लज्जित होके बोलते हैं आप जो बोला है वो बहुत सत्य है। आप जो बोला बहुत सत्य है। और ऐसा बोल के उन्होंने आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। हम भजन गाया था आज, क्या भजन गाया था, गुरुदेव का भजन गाया था। क्योंकि गुरु का कृपा नहीं है तो हम कुछ काम का नहीं है। अभी ये तत्ववाद आचार्य भी मध्वाचार्य के प्रति इतना उन परंपरा के प्रति बहुत इतना आदर सत्कार है। उन्होंने क्या बोला, तथापि मध्वाचार्य ये करियच निर्बंधना
निर्बंध से आचार्य सबे संप्रदाय संबंध. Still, whatever Madhvacharya has established as the formula for our party, we practice as a party policy. इसका मतलब क्या है? चैतन्य महाप्रभु का जो उत्तर था पंचम पुरुषार्थ के बारे में और साध्य साधन के बारे में, लक्ष्य के बारे में जो भी चैतन्य महाप्रभु बताया था, वो तत्ववाद आचार्य मान लिया, लेकिन बोला था कि हमारा आचार्य है मध्वाचार्य जो बोला था वो हमको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हम उसी संप्रदाय में है. सिमिलर इंस्टेंस क्या होता है जब प्रकाशानंद सरस्वती उनके शिष्यगणों को उद्धार करते हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ सेम ऐसे उत्तर मिलते हैं. आप जो सही बोल रहे, जो बोले बहुत सही, सब कुछ सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं आपका जो तत्व के सार, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम ये संप्रदाय में हमको पालन करना ही पड़ता है. वो लोग भी सेम उत्तर दिया था चैतन्य महाप्रभु को. अब इधर भी मध्वाचार्य संप्रदाय का सभी फॉलोअर से सेम तत्ववादी जो है वही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा परंपरा में आचार्य जो गुरु है वो बताया, वो पालन करना ही पड़ेगा, है ना. देखिए गुरु का इतना ये होता है, गुरु निष्ठा. और इसको देख के चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, सुनिए. प्रभु कहे कर्म ज्ञानी दुई भक्तिहीना, तुम्हारा संप्रदाय देखी से दुई छिन्ना. श्री चैतन्य महाप्रभु said both the fruity worker and the speculative philosopher are considered non-devotees. We see both elements present in your sampradaya. देखिए जिस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु है वो खुद बोल रहे हैं आपका संप्रदाय. शुरुआत में एक जगह पे पार्क किया था, आपको याद है कि नहीं? बता रहा था कि हाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे थे, आपका संप्रदाय में जो दो चीज बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, क्या है वो? कर्म और ज्ञान बहुत अच्छी रूप से दिखाई पड़ रहा है आपका संप्रदाय में. इसलिए क्या बोला था, जो भी कर्म ज्ञान पालन करते हैं उनको अभक्त कहलाता है, नॉन डिवोटीज कहलाता है, भक्तिहीन है, उनके पास भक्ति नहीं रहता है, कर्म और ज्ञान जिसके पास रहता है, ऐसे बता रहे चैतन्य महाप्रभु. लेकिन अब अच्छा गुण बता रहे, देखिए. सब एक गुण देखी तुम्हारा संप्रदाय, सत्य विग्रह करी ईश्वर करह निश्चय. द ओनली क्वालिफिकेशन दैट आई सी इन योर संप्रदाय इज दैट यू एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ लॉर्ड एज ट्रुथ. The only qualification your sampradaya has is accepting the form of the Lord. That's why you are considered. ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु आगे प्रस्थान किया था. अभी इधर हम पता चलता है चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कहा गया तुम्हारा संप्रदाय. ऐसा क्यों कहा गया? याद है शुरुआत में क्या हुआ था, जब चैतन्य महाप्रभु भाववेश में वो नर्तन गोपाल के सामने नाचते हुए संकीर्तन करते, तो क्या किया था वो लोग ने? क्यों? उधर हम थोड़ा स्पेकुलेट कर सकते हैं. समझा कि ये जो ऐसा लग रहा है वो सन्यासी बस भाववेश होके नाम कीर्तन कर रहे हो के समझा, लेकिन बाद में वो देख के उनको सम्मान किया था. ये वही कारण था जब पहली बार देखा था चैतन्य महाप्रभु को, उनको संभाषण नहीं किया था. इसके देखते हुए अभी चैतन्य महाप्रभु क्या किया था, इधर तुम्हारा संप्रदाय करके संवादित किया, संभाषण किया, है ना. अगर कोई गलती करते तो क्या करते हैं हम लोग, किसी कोई डिवोटी की गलती करता है, हम तुरंत क्या करते हैं, अरे आपका अंडर में है ना. अगर उनको करेक्ट करना है तो हम क्या करते, डायरेक्ट नहीं करते, बोलते आप इनके अंडर है ना. अगर कोई चेला कुछ गलती किया तो किसको जाते हैं वो बदनाम, गुरु को जाता है ना. इसलिए सावधानी रहना चाहिए. अभी चैतन्य महाप्रभु का क्या किया था, पूरे संप्रदाय को बोल रहे अरे आप ऐसा कर गए. सिमिलरली इंस्टेंट एक बार हुआ था जब गुंडीचे मार्जन हो रहा था,
बंगाल से जो भक्त आते हैं, हालांकि सब चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं, उधर से बोलते हैं उनके स्वरूप दामोदर को बोल के तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव ऐसा बोलते हैं। देखो आपका भक्तगण बंगाली भक्त ऐसा कर रहे, देखो मेरे चरण का पानी ले रहे, उस समय भी सेम संबोधित है। इससे पता चलता है जो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान जो है, ये सारे जो भी भौतिक डेजिग्नेशन है उसके परे है। इज बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। दैट्स वेयर इज कनेक्टेड टुवर्ड्स श्रीमद् भागवतम वर्स, सपोज्ड वर्स। आई वांट टू कनेक्ट बट आई डिडंट कनेक्ट। भगवान ऐसे 3 गुने से परे है। सारे जो भौतिक डेजिग्नेशन है उससे परे है। हम इधर ही विराम करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, मध्वाचार्य की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की। किसी का कुछ प्रश्न? यस। प्रभु जी, वहाँ पे बोला था कि द डिवोटीज आर नॉट अफ्रेड इवन टू गो टू द हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ, और दे कंसिडर इट्स द सेम. सो व्हाट इज दैट हेलिश कंडीशन लाइक दे विल बी फ्राइड और दे विल बी बॉइल्ड? हाउ विल दे परफॉर्म डिवोशनल सर्विस देन? लाइक व्हाट इज दिस हेलिश कंडीशन? Don't worry, when you read Srimad Bhagavatam 5th canto, there is a special chapter named the description of hellish planets, where you will come to know more detail. How many types of hellish planets are there, what punishments are going to be there, residents of that planets, how they behave. Full detail is there. You can read. कृष्ण प्रभु जी, सो हम जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम मतलब उसका तिलक का देखते हैं, ये ऊर्ध्वपुंड है या त्रिपुंड है, जिससे हमको पता चलता है कि अगर ऊर्ध्वपुंड है तो वो वैष्णव सन्यासी है, वैष्णव है. तो चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो उन्होंने तो ऊर्ध्वपुंड लगा के रखा होगा, तो उनको कैसे वो गलती से ये बोल दिया कि मायावती सन्यासी है? नहीं बोला, नहीं बोलो मायावती, मतलब उसने समझा, यहाँ पे लिखा था कि उसने समझा ये मायावादी है, तत्ववादियों ने समझा था कि मायावादी सन्यासी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो ऊर्ध्वपुंड लगा के रखा था. हमको पता है चैतन्य प्रभु कहाँ से संन्यास लिया था? मायावादी संप्रदाय से लिया था, भारतीय संप्रदाय से लिया था. लेकिन उसको थोड़ा ना पता है कि किससे संन्यास लिया. एक संप्रदाय का वेशभूषण अलग होता है, उनका सब कुछ अलग होता है. जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो एक दंड से लेके चलता है, एक दंड होता है उसका. जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उनके पास त्रिदंड होता है. इसके बारे में डिटेल में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एंड प्रभुपाद दे एक्सप्लेन्स इन वन ऑफ द परपोर्ट्स इन इनिशियल चैप्टर्स ऑफ आदि लीला अबाउट दंडा, फ्रॉम वेयर चैतन्य महाप्रभु टुक संन्यास, दिस संप्रदाय इज कंसिडर्ड हाईएस्ट और दिस इज लोएस्ट. फुल डिटेल्स इज देयर, यू कैन रिफर दैट सेक्शन इफ यू वांट. तो वही मेरा इसी इसको देखते हुए पहचान लिया वो लोग मायावादी सन्यासी हो सकता है, गेस कर. लेकिन चैतन्य महाप्रभु का फिजिकल अपीयरेंस तो एक वैष्णव सन्यासी की तरह था. नहीं, चैतन्य महाप्रभु वो सन्यासी का सेम स्टाइल रहता है, लेकिन एक दंडा तो रिफर रहता था. और खास करके 2 चीज़ से हम वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. प्रभुपाद परपट में बताते हैं, उसी परपट में जब मायावादी सन्यास दीक्षा लेते हैं, they will even reject this Gayatri thread, Brahman thread. They will reject, and they will accept danda, ekadanda, and they will reject this shika also. This is the physical differences we can differentiate from Mayavadi sannyasi and Vaishnava sannyasi. By seeing this external appearance, they might have concluded that he is a Mayavadi sannyasi. But when he was doing Prem Nam Sankirtan, then they realized that he is not that one. तो चैतन्य महाप्रभु का भी मतलब सिखा नहीं था और गायत्री नहीं था. नहीं, चैतन्य महाप्रभु ये दोनों रखा. तो फिर उसे पता चल गया ना प्रभु जी कि वो वैष्णव सन्यासी हैं. फिर इसलिए बाद में वो डिफरेंशिएट किया था ना. एक दृष्टि में उनको पता चला नहीं, दूसरा दृष्टि देखा तब पता चला कि ये वैष्णव सन्यासी करके उनको सत्कार किया है. बहुत आदर क्या था, एग्जैक्ट लाइन, बहुत सत्कार किया था, थोड़ा भी नहीं, बहुत.
वही मेरे ख्याल से मैं गेस कर रहा था, सिर्फ डंडा देख के उनको पहचाना हो। प्रभु जी को कुछ प्रश्न? अभी प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु पार्टी कल्चर को एंकरेज कर रहे हैं कि डिस्करेज कर रहे हैं? किसका? पार्टी कल्चर। पार्टी कल्चर मेरे को पता है, समझ में नहीं आ रहा किस कंटेक्स्ट में प्रश्न पूछ रहे हैं आप। समझ में आया ना? हो पार्टी कल्चर में ग्रुपिज्म, इन अदर वर्ड। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु पार्टी कल्चर को एंकरेज कर रहे हैं, डिस्करेज? यस, हम ये चैतन्य महाप्रभु को दो लीला से हम समझ सकते हैं। जैसा कि जब मायावादी सन्यास का उद्धार कर रहा था, प्रकाशानंद सरस्वती हेड था उन लोगों का, उस समय भी ऐसे हुआ था, सेम संभाषण हुआ था। उनको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन दिया था, आप जो पालन कर रहे हैं वो संपूर्ण नहीं है, असंपूर्ण है करके उनको समझाया। उन लोग भी मान लिया, लेकिन वो को क्या बोला था, अरे हमारा संप्रदाय है, गुरु है जो बोला है पालन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ा। अब इधर भी ऐसा है सेम। Case of Prakashananda Saraswati, they all got converted as Vaishnavas, all Prakashananda Saraswati and disciples. In the case of Tattvavadis, they didn't change their opinion. They appreciated Chaitanya Mahaprabhu is right, but they didn't change their attitude or opinion. Even in the case of Chandakazi didn't convert it into Hindu or anything. He still continued. Maybe he was eating meat, he would have continued eating meat. No, I think he stopped. He accepted our religion is not perfect. That he made it. That way Chaitanya Mahaprabhu was become victorious. But he being a leader, if he gets converted, then there will be chaos in the society. So Chaitanya Mahaprabhu also didn't push like, better you stay in your party. Like that he left him. So different situations, like Mayavadis, thousands of Mayavadis became Vaishnavas in Varanasi. Maybe little light in this 3 different scenarios. उसके लिए मैं शास्त्र के प्रमाण पे मेरे को उतना आइडिया नहीं है। अगर स्पेकुलेट करके बोलते तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो इसको स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ मैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बेटर है उसको होल्ड में रख सकते, कोई महाराज आए तो महाराज से पूछ सकते हैं हम लोग। नहीं है तो जब हम कैंप करेंगे उडुपी में, तब इसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये प्रश्न कमलोचन प्रभु को पूछ सकते हैं, ही नोस बेटर। ही विल गिव क्लैरिटी बिकॉज ही वॉज ओरिजिनल बिलोंग टू सेम संप्रदाय, and he gives extensive lectures on Madhvacharya. Okay. श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की, अनंत कोटि वैष्णव की। जय गो।